Hello students, how are you students? I know very well you all are fit and fine. Students, welcome back to the video class at Little Angel School at home. Okay, make sure that you have your computer textbook with you with all the time while attending the class. So students, please take next 5 seconds to keep your book ready. 5, 4, 3, 2 and 1. Students, I hope you all are ready. Yes. So today let's get start. Okay. Today we are going to day 2 of your chapter 3rd. Okay. So in the previous video we covered the day 1 of your chapter 3rd till features of Windows. Okay. Now we are going to cover this day 2. Okay. So let's get start. This is your chapter number 3rd, that is the working with Windows 10. I already told you Windows 10 is the version of Microsoft Windows. Okay, and Windows is operating system who manage and control overall processing on your computer. Okay, so let's start. These are some topics which your computer टेक्स्ट बुक हैज़ बिन कवर्ड. ये कुछ टॉपिक्स रखे हैं जो आपकी कंप्यूटर टेक्स्ट बुक ने कवर्ड किए हैं. तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड विद द फर्स्ट टॉपिक इन डे 1 माइक्रोसॉफ्ट विंडो. नाउ in this video, that is the day 2 video, we have to cover the working with window 10. Okay students, the working with window 10, so how to work with window 10. Okay, so let's get start. Students, working with window 10. So in this video we learned about the working of with window 10, how to work with window 10. Okay, so have you seen this screen student? Have you seen these types of screen? This is window 10 screen, okay, on your computer monitors. So let's get start with this screen. Okay students, in this screen some pictures or some lights are appear. Okay, this one. Okay, so let's start with these pictures and lights. When we switch on the system, Windows start automatically. जब भी हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, पावर ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो हमारी विंडो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है. तो जब भी स्क्रीन पर विंडो स्टार्ट होकर कोई स्क्रीन अपीयर होती है, उस स्क्रीन को हम बोलते हैं डेस्कटॉप. Like this is called the desktop. This is so some main screen of Windows is called desktop. So when we switch on the system, Windows start automatically and the main screen of window is called desktop. Have you seen this window? Sorry, this screen. Okay, ये पूरी स्क्रीन आपको शो हो रही है, दिस वन. ओके, जितनी भी कंप्लीट स्क्रीन आपको शो हो रही है स्टूडेंट, दिस वन is called the desktop. Now in this desktop there are many things are appear. Okay, so let's start with this desktop. Okay, that is called the window desktop. विंडो डेस्कटॉप मैंने आपको बताया था, जो स्क्रीन आपकी अपीयर होती है उसको हम बोलते हैं विंडो डेस्कटॉप. नाउ in this desktop there are many things are appears like icons, wallpaper. So what is the wallpaper and what is the icon? Let's start with these. So students, what is window desktop? Window desktop contain useful and frequently used items और programs. Okay, जो भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले आइटम्स और प्रोग्राम्स होते हैं और जो बहुत यूज़फुल होते हैं वो कंटेन करके रखता है विंडो डेस्कटॉप. ओके, दे आर मेनली 3 थिंग्स ऑन द डेस्कटॉप. आपकी जो विंडो डेस्कटॉप है उस पर तीन चीज़ें होती हैं. फर्स्ट वन इज़ वॉलपेपर, सेकेंड वन इज़ icons, and third one is taskbar. Okay, so let's start with the wallpaper, icons and taskbar. Okay, so let's start with these. Now in here, first of all wallpaper, we talk about the wallpaper. So wallpaper क्या होता है?
जो भी हमारे स्क्रीन के डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पर शो होता है, लाइक जैसे कि कोई पिक्चर शो हो रही है या कोई थीम शो हो रही है, उसको हम वॉलपेपर बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आइकन, स्मॉल ग्राफिक्स और पिक्चर्स दैट वी सी ऑन डेस्कटॉप और कॉल्ड आइकन्स। ओके, जो भी हमारे पास छोटे छोटे पिक्चर्स होती हैं, छोटे छोटे इसी से पिक्चर्स हमारी स्क्रीन पर शो होती हैं और ग्राफिक्स शो होते हैं उन डेस्कटॉप के ऊपर, वो उसे हम आइकन्स के नाम देते हैं, आइकन्स कहते हैं उन्हें। ओके स्टूडेंट्स, now computer, internet explorer and recycleware are the some icons we find on a computer। बेसिकली 3 आइकन्स हमारे स्क्रीन पर होते ही हैं, जैसे कि हमारा कंप्यूटर हो गया, जिसे हम माई दिस पीसी भी बोल सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन हो गया, रिसाइकिल बिन आइकन हो गया। ये कुछ आइकन्स हैं जो हम अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आइकन रिप्रेजेंट्स प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर्स। जो आइकन्स होते हैं वो आपके प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं कि दिस इज़ ए फाइल, दिस इज़ ए फोल्डर, दिस इज़ ए प्रोग्राम। ओके, ए न्यू विंडोज ओपन व्हेन वी डबल क्लिक ऑन एनी आइकन। जब भी हम किसी आइकन पर डबल क्लिक करते हैं, ओके, हमने अपने माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करा तो किसी भी आइकन पे, तो हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन होती है उस आइकन के अकॉर्डिंग। सपोज आपकी एक वर्ड फाइल का आइकन बना हुआ है, हमने उस पर डबल क्लिक कर दिया तो आपकी वर्ड फाइल ओपन होगी। सपोज हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर का एक आइकन बना हुआ है आपके कंप्यूटर पे, उसको डबल क्लिक किया तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर का विंडो अपीयर होगा। ओके, तो सम आइकन ऑन ए डेस्कटॉप आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ आइकन्स होते हैं हमारे पास जिसे मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ नीचे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा दिस पीसी। ओके, फर्स्ट है हमारा दिस पीसी। हैव यू सीन दिस आइकन? This is also called the my computer and this is called the this PC. It helps us to work on different drives and folders that store information inside a computer। आपके कंप्यूटर के अंदर जो कुछ फोल्डर्स और ड्राइव्स होते हैं उसके साथ हमें वर्क करने में हेल्प करता है ये। ठीक है, और वो फोल्डर्स और ड्राइव्स हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं कंप्यूटर के अंदर। कहीं कहीं हम इसे माई कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, so this is called the this PC। now next is internet explorer। next is internet explorer। have you seen this icon? this is the icon of internet explorer। it enable us to connect to the internet। ये हमको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। किसके साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है? इंटरनेट के साथ। जब भी आप अपने कंप्यूटर पर नेट चलाते हैं तो ये हमको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज recycle bin। recycle bin, have you seen this icon? this icon, this is the like waste box in which some material are there, in which some papers are there। so recycle हम एक तरीके से डस्टबिन बोल सकते हैं। recycle को क्या बोल सकते हैं? एक तरीके से जैसे डस्टबिन, जैसे आपके घर में पेपर्स को कलेक्ट करने के लिए डस्टबिन होता है, उसमें आप अपने पेपर्स, वेस्ट पेपर डालते हैं। ठीक है, लाइक दिस हमारे कंप्यूटर के अंदर भी एक डस्टबिन होता है जिसमें हम अपने डिलीटेड फाइल स्टोर कर सकते हैं। सो रिसाइकिल बिन क्या होता है? इट स्टोर द डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर्स टिल वी डिलीट दैम परमानेंटली। हम जब तक उन्हें परमानेंटली डिलीट नहीं करते अपने फाइल एंड फोल्डर को, तो रिसाइकिल क्या करता है? वो उन डिलीटेड फाइल को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। इट लाइक ए वेस्ट पेपर बास्केट। इसे हम वेस्ट पेपर बास्केट भी बोलते हैं। जब भी आपको अगर रीस्टोर करनी है उन फाइल्स को, तो आप रिसाइकिल बिन में जाकर अपनी डिलीटेड फाइल को रीस्टोर कर सकते हैं और आपकी फाइल दोबारा से अगेन उसी लोकेशन पर जाकर रीस्टोर हो जाती है जहाँ से आपने फाइल को डिलीट किया था। ठीक है, तो ये तीनों आपको आइकन क्लियर हुए, दिस पीसी, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड रिसाइकिल बिन। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू अरेंज द आइकन्स। जो भी हमने आइकन्स पढ़ रहे हैं उनको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस सम फॉलोइंग स्टेप्स हाउ टू अरेंज द साइकिल। तो अरेंजिंग द follow this step to arrange the icons on your desktop। some steps are there। okay, so let's start with first step। this is the first step। have you seen the first step? right click on the desktop, a list of option appear। आप अपने माउस के आपके माउस में 2 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन। तो आपको क्या करना है?
डेस्कटॉप पर, ब्लैंक स्क्रीन पर जाना डेस्कटॉप पर, और कहीं भी आप उस पर राइट क्लिक करोगे। जब भी आप राइट क्लिक करोगे तो आपके पास इस टाइप की एक लिस्ट अपीयर होगी। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, ए लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर। ओके, लाइक इस तरीके की लिस्ट अपीयर होगी। ओके, नाउ सेकंड इज सिलेक्ट द व्यू ऑप्शन। इस लिस्ट में से आपको ये जो व्यू ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है। द स्टेप इज सेकंड इज सिलेक्ट द व्यू ऑप्शन। तो जब आप ये सिलेक्ट करोगे तो आपके पास एक अगेन सेकंड लिस्ट अपेयर होगी जो व्यू की लिस्ट होगी। ठीक है, जो व्यू के लिए लिस्ट होगी। इसमें सम कुछ नेम्स होंगे जैसे लार्ज आइकन, मीडियम आइकन्स, स्मॉल आइकन्स, ऑटो अरेंज आइकन, अलाइन आइकन टू ग्रिड एंड शो डेस्कटॉप्स आइकन्स। ये कुछ हमारे पास लिस्ट होंगे, उसमें से आपको चूज करना है ऑटो अरेंज आइकन। ओके, क्लिक ऑन ऑटो अरेंज आइकन ऑप्शन। आपको इस लिस्ट में से ऑटो अरेंज आइकन दिख रहा है? यस, तो आपको इस ऑटो अरेंज आइकन को क्लिक करना है विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट माउस बटन। ओके, सो थर्ड स्टेप इज क्लिक ऑन द ऑटो अरेंज आइकन ऑप्शन। ऑब्जर्व द चेंजेस। आपको जब आपने ये ऑटो अरेंज आइकन किया तो आप उस ऑब्जर्व करेंगे कि आपके आइकन्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ओके, स्टार्ट। तो दिस इज द अरेंज द आइकन्स। Now next is sorting the icons. How to sort the icons? Okay, so let's start with following step. First step is same. Right click on the desktop, a list of option appear. आपने माउस बटन के को डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है तो आपके पास वही वाली लिस्ट आएगी जो आपको मैंने अरेंज द आइकन में शो करी थी। ठीक है, तो आपको राइट क्लिक करना है तो आपके पास लिस्ट शो होगी। सेकंड स्टेप, जब आपको इस टाइप की लिस्ट शो हुई तो आपको लिस्ट में से सिलेक्ट करना है शॉर्ट बाय ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हम शॉर्टिंग पढ़ रहे हैं तो आपको सिलेक्ट करना है शॉर्ट। दिस वन इज अ शॉर्ट बाय ऑप्शन। सिलेक्ट द शॉर्ट बाय ऑप्शन। नाउ द आइकन कैन बी शॉर्टेड बाय नेम एंड आइटम टाइप और डेट मॉडिफाई। ओके, जब आपने सॉर्ट बाय ऑप्शन सेलेक्ट किया दिस वन, ठीक है, तो आपके पास ये कुछ लिस्ट अपेयर हुई जिसके अंदर नेम, साइज, आइटम टाइप एंड डेट मॉडिफाई के ऑप्शन आपको अपेयर हुए। ठीक है, कुछ लिस्ट अपेयर हुई। अब क्या करना है आप? थर्ड स्टेप, क्लिक ऑन द साइज ऑप्शन। आपने उसमें से साइज ऑप्शन क्लिक करना है। द आइकन विल बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द फाइल साइज। ओके, जो भी आपके पास, अगर जब आपने साइज़ के अकॉर्डिंग आइकन सेलेक्ट किया, ठीक है, तो आपके आइकन कैसे शॉर्ट हो जाएंगे? आपके साइज़ के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आपके आइकन अरेंज हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग एन आइकन। आपने आइकन को कैसे सिलेक्ट करना है? ठीक है, उसके लिए अभी हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। ऑन सिलेक्टिंग एन आइकन इट्स कलर चेंज। जैसे ही आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, जैसे ही आपने आइकन को सिलेक्ट किया तो उसका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फॉलोइंग दिस स्टेप टू सिलेक्ट एन आइकन्स। फर्स्ट स्टेप, ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन द आइकन। ये आपको दिख रहा है, दिस एरो साइन, दिस वन, ये आपका माउस पॉइंटर है। आपको क्या करना है, इस माउस पॉइंटर को अपने किसी भी आइकन पर लेके आना है। सपोज मैं माई पीसी पर आइकन लेकर आ रही हूँ, डेट मीन्स दिस कंप्यूटर पे, तो आपने अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पर लेके आना है। ब्रिंग द माउस बटन ऑन द आइकन, ये एक आइकन है, हमने माउस बटन पर उस आइकन को लेकर आए हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ब्रिंग द माउस बटन ऑन द आइकन्स। नाउ सेकेंड इज प्रेस द लेफ्ट माउस बटन टू सिलेक्ट इट। जैसे ही आपका पॉइंटर यहाँ पर आया तो आपको क्या करना है, आपके माउस से आपको लेफ्ट बटन प्रेस करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप इज प्रेस द लेफ्ट माउस बटन टू सिलेक्ट इट। जैसे ही आपने वो सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो आपके आइकन का कलर चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ डीसिलेक्टिंग एन आइकन। डीसिलेक्टिंग एन आइकन, अब एक आपने आइकन सिलेक्ट कर दिया तो उसका आइकन का कलर चेंज हुआ। ठीक है, अब अगर मेरे को उसे डीसिलेक्ट करना है, मैंने वो गलती से सिलेक्ट कर दिया था, अब उसे डीसिलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या होगा? जैसे ही आप अपने आइकन को डीसिलेक्ट कर दोगे तो
तो आपका जो कलर चेंज हुआ था आपके आइकन का वो ऑटोमेटिकली ओरिजिनल कलर पर आ जाता है, ठीक है। When the icon is deselected, the color of the selected icon changes to its original color. Following these steps to deselect an icon. इसके भी हमारे पास steps होते हैं, तो we have to follow these steps to deselect an icon. So for deselecting icon, the first step is there. The first step is move the mouse pointer away from the selected icon. आपने जब सेलेक्ट किया आइकन को, सपोज इस आइकन को आपने सेलेक्ट किया था, तो आपने अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पर लेकर आए थे। अब क्या करना है आपको, जब डीसेलेक्ट करना है तो आपका जो माउस पॉइंटर है उसको आपको आपके सिलेक्टेड आइकन से दूर लेकर जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप्स क्या बोल रहा है आपका, मूव द माउस पॉइंटर अवे फ्रॉम द सिलेक्टेड आइकन। जैसे ही आप दूर लेके जाओगे तो आपके आइकन का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। After the first step you have to follow the second step, and second step is click the left mouse button once, okay, and the icon gets deselected. जब आपने माउस के पॉइंटर को अपने सिलेक्टेड आइटम से दूर लेके गए तो आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, अपने माउस के लेफ्ट बटन को एक ही बार प्रेस करना है। जब एक बार प्रेस करोगे तो जो सिलेक्टेड आइकन है आपका, वो आपका डीसेलेक्ट हो जाएगा, ओके। So students, today we are covering the icons, arranging the icons, okay, selecting the icons, sorting the icon and deselecting the icons. Now in the next video we covered the task work, okay, task work and other topics of your chapter 3rd, okay students. So it's time to homework. You have to learn about the icons, okay, in which sorting icons, arranging icons, selected icons and deselected icons, okay students. So students, have a nice day, take care, bye bye, stay home, stay safe, bye bye.